Hi friends, welcome to my channel. Please watch my video till the end and don't forget to like, share and subscribe. So let's start today's session. Today we are going to start geography class 8 second chapter land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Okay, so these all are the natural resources. What is the natural resources? All the substance which we are getting from the nature are called natural resources. Okay, in detail we already discussed in the previous classes. Okay, so in this chapter they are talking about two kids, Mamba and Peter. Mamba lives in Tanzania, which is in Africa, and Peter lives in New Zealand. Okay, so if we talk about the Mamba's place, so in which area, in which place she lives, that is a very rocky land and it's not fertile. Water is not available enough there. Okay, so her father barely grows some crops which is not enough to survive her family. Okay, if we talk about Peter, so Peter's father runs a wool processing factory by using some technology. There is a grassy land, enough water is available there. Okay, so in both two examples, we can conclude that the different places on the earth differ from each other. Okay, जो different parts हैं अर्थ पर या वर्ल्ड पर, वो क्या है, एक दूसरे से डिफर करते हैं. Okay, why they differ from each other? Because of land, soil, natural vegetation, animal and the uses of technology. Okay, because land जो है वो अर्थ पर, ऑल ओवर द अर्थ पर सेम नहीं है. कहीं कहीं पर अनइवन लैंड है, कहीं फर्टाइल लैंड है, कहीं कहीं पर माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं. सो ऑल ओवर द अर्थ पर जो लैंड है वो सेम नहीं है. ओके, इसी प्रकार soil and natural vegetations, animal and water availability also is not same on the earth. So that's why different places on the earth differ from each other. Okay, uh, so next we'll talk about land. Okay, so land is the most important natural resources which covers only about 30% of the total area. Okay, जो अपना total earth crust है उसका 30% जो एरिया है ऑनली वो क्या है, अर्थ सरफेस है, एंड रिमेनिंग 70% पर क्या है, वाटर है. ओके, सो और जो जो 30% जो एरिया है वो भी क्या है, कम्प्लीटली हैबिटेबल नहीं है. इसका भी जो पूरा का पूरा 30% एरिया, इतना कम एरिया है, वो भी क्या है, हैबिटेबल नहीं है. हैबिटेबल मीन्स होता है it is good for live, or it is suitable for the survival of life. Okay, so in both two pictures we can say this is a habitable area. Okay, लैंड है यहाँ पर, वाटर है और ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं. दैट्स व्हाई ओनली एनिमल्स कैन सर्वाइव देयर. ओके, इफ यू टॉक अबाउट दिस प्लेस, दिस इज अ डेजर्ट एरियाज. देयर इज नो वाटर. इफ वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, तो हाउ कैन एनीबडी सर्वाइव इन दैट एरियाज. ओके, और सम मोर एग्जांपल वी कैन टेक, लाइक वी टॉक अबाउट थिक फॉरेस्ट एरियाज, तो वहाँ भी क्या होता है, दैट इज नॉट हैबिटेबल फॉर ह्यूमंस. वहाँ थिक फॉरेस्ट एरियाज में वाइल्ड एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, पर ह्यूमन वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, एंड वेयर इज इफ वी टॉक अबाउट द प्लेन एरियाज एंड वैलीज एरियाज, तो वहाँ पर क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. क्यों होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड? क्योंकि वहाँ पर रिवर वाटर के क्या कारण क्या होता है, वहाँ का जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. वहाँ की जो लैंड होती है वो कैसी होती है, फर्टाइल लैंड होती है. फर्टाइल लैंड होने से क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो वहाँ पर क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. ओके, और वहीं पर डेजर्ट एरिया में क्या होगी, जब वाटर नहीं होगा इनफ अमाउंट में, तो और सॉइल भी अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा. जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. ये होता है हैबिटेबल, माने द एरिया विच इज सूटेबल फॉर लिव, और अनइनहेबिटेबल मीन्स जो ऐसा एरिया या ऐसा लैंड विच इज नॉट सूटेबल फॉर द लिव.
The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climate. Okay, so land and climate ये दोनों ही एक ऐसे मेन फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन का वेरी करना, कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी. सो दीज आर द मेन टू फैक्टर्स. लैंड अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो वहाँ पर क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. अगर क्लाइमेट, सपोज बात करें पोलर रीजन्स की, तो पोलर रीजन्स में क्या होता है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो वहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता. ओके, तो जहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, जहाँ की लैंड फर्टाइल होगी, और इन दैट प्लेसेस people can live. So that areas or that regions are called densely populated areas. Okay. So next we talk about uses of land. So okay, if you look surrounding your house, okay, तो आप देखेंगे कई सारे पर लैंड के यूजेस आप देख सकते हैं. ठीक है, जैसे इन विच हाउस यू आर स्टेइंग, दैट इज आल्सो यूजेस ऑफ लैंड. You are going to hospital, that is also uses of land. You are going to, you are walking on the roads, okay, so that is also a uses of land. मल्टीप्लेक्सेस हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं आप, तो वो क्या है, वो भी तो एक लैंड का यूज है. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके लैंड के यूजेस हैं. ओके, और हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर है, जो भी आप क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, वो कहाँ करते हैं, फार्म्स के अंदर. फार्म्स क्या है, लैंड का यूजेस है. फॉरेस्ट्री है, माइनिंग्स है माइनिंग्स. आप जो मिनरल्स यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम, मेटल्स, वट एवर मिनरल्स यू आर यूजिंग, that you are getting from the land, so that is also the uses of land. Okay, so we can say agriculture, forestry, mining, building houses, roads, okay, setting up industries. These are all the uses of land. Okay, सो जो लैंड के जो यूजेस हैं वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. ओके, फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. वो क्या होते हैं फैक्टर्स, वो होते हैं आपके टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स. टोपोग्राफी के मीन्स क्या होता है, टोपोग्राफी मीन्स होता है वहाँ की जो लैंड है वो कैसी है. ठीक है, दैट इज अ माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज, प्लेटू, डेजर्ट एरियाज. तो जो लैंड का जो सरफेस है उसकी क्वालिटी को हम बोलेंगे टोपोग्राफी. ओके, क्लाइमेट्स यू नो वेरी वेल, आपको वहाँ का वेदर, वेदर कैसा है, वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, मॉडरेट है. दिस इज ऑल्सो is a main factor uses of land. सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, क्योंकि हर क्रॉप्स को उगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल की ज़रूरत होती है. ठीक है, सारी क्रॉप्स के लिए सेम टाइप्स की सॉइल आपको नहीं चाहिए. जैसे कॉटन क्रॉप्स के लिए आपको चाहिए ब्लैक सॉइल, वीट, ग्राम, ठीक है, इन सब के लिए आपको चाहिए ऑलिविल सॉइल्स. तो सॉइल भी different crops के लिए you need to different types of soil. So this is also the main factor using of land. Minerals and availability of water. Availability of water is a main factor to uses of land. अगर water enough मात्रा में available है तो आप उसको land को ज़्यादा as a resource आप अच्छे से यूज कर सकते हैं. अगर water की availability नहीं है तो you cannot use it in proper way. Okay, so human made factor कौन से होंगे, population and technology. So populations and technology are also important determinant of land use pattern. क्योंकि टेक्नोलॉजी क्यों मैटर करती है, कि अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उस एरिया के अंदर तो आप उस लैंड को बेटर रिसोर्स बनाने में यूज कर सकते हो. ओके, यू कैन यूज दैट लैंड एज अ मोर रिसोर्सेबल. ओके, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी ऑल्सो डज मैटर टू यूजेज ऑफ लैंड. नाउ लेट्स मूव. अब बात करते हैं कि लैंड को भी क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. सो व्हाट इज द प्राइवेट लैंड, तो प्राइवेट लैंड होती है ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. ओके, जो कि जिस पर कि सिर्फ एक
पर्सनल एक इंडिविजुअल्स का ही राइट्स है। ओके, जैसे आपका घर है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार है। ठीक है, आप जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं। यू कैन गिव इट टू द रेंट, यू कैन बिल्ड इट, यू कैन रिकंस्ट्रक्ट इट। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू विथ इट, because that is your property. Okay, so that is the individual rights. Okay, private land. If next we talk about community land, तो community land क्या होती है? Owned by the community for common uses. Common माने जिस पर एक इंडिविजुअल का राइट नहीं है। कॉमन माने मोर देन वन पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल पर जिसका राइट्स हो, उसको बोलेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी भी वी कैन सी। तो इस तरह की चीजों को हम बोलेंगे कम्युनिटी लैंड। वो हो सकते हैं आपके हॉस्पिटल, फॉर्डर, स्कूल, टेम्पल। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी? ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिटी लैंड के अंदर आती हैं, जहाँ की जिन चीज़ों को मोर देन नंबर ऑफ पीपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कम्युनिटी लैंड। ओके, और इन कम्युनिटी लैंड्स को ही आप बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ओके, सो दीज जो कम्युनिटी लैंड्स हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लैंड के इतने ज़्यादा यूजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मेजर थ्रेट्स हैं लैंड के साथ, क्या है? कुछ चैलेंजेस हैं विच लैंड इज फेसिंग। तो वो थ्रेट्स कौन कौन से हैं? दैट आर द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, soil erosion, desertifications. These are the major threats to the environment regarding to the land. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेड का मतलब होता है कि जो लैंड की क्वालिटी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। वो क्यों कम हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है? रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन का रैपिडली इंक्रीज होने से जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। रूरल एरिया में बात करें तो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो एक्सपैंड होती जा रही है। ठीक है, मोर एंड मोर क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए आप उस एरिया को, एग्रीकल्चरल एरिया को बढ़ा रहे हैं, और आप मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या हो रही है? लैंड डिग्रेड हो रही है। वेदर इन सिटीज़ मोर एंड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर देयर। सो फैक्ट्री से निकलने वाले पानी कहाँ मिल रहा है? सॉइल्स के अंदर मिल रहा है। तो वो सॉइल क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो दैट इज द रीजन ऑफ डिग्रेडेशन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड एक नेचुरल थिंग, नेचुरल जैसे कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके फ्लड्स, volcanoes, earthquake. Okay, these are the causes of landslides. And soil erosion, deforestation is the main cause of soil erosion. होता क्या है? जब प्लांट्स अगर होंगे लैंड पर तो क्या कहते हैं? सॉइल को पकड़ के रखते हैं। जब बहुत तेज बारिश होगी या फ्लड आएगा तो जो मिट्टी है वो जड़ों से चिपकी रहती है और वो पूरी पूरी बह नहीं पाती है। ठीक है, अगर वहां पर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगी? वो पानी के साथ मिट्टी बह जाती है। उसी को बोलते हैं सोइल एरोजन। सो डिफॉरेस्टेशन या पेड़ों की कटाई या जंगलों की कटाई, इट इज द मेन रीजन ऑफ सोइल एरोजन। Now talk about desertification. So desertification is also is a kind of land degradation. Desertification के अंदर भी क्या होता है? धीरे धीरे जो लैंड की फर्टिलिटी है, जो लैंड की क्वालिटी है वो कम होती जाती है, एंड फर्टाइल लैंड कैन बिकम अ एरिड लैंड। ओके, barren land also we can say. So land degradation, landslide, soil erosion, desertification, these are the major threat to the environment. और इसके causes क्या हैं? Expansion of agriculture and constructive activities. These are the main reason behind this. Okay. Now we talk about the conservation, land conservation. Okay. लैंड कंजर्वेशन इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमें जो भी चीजें मिल रही है वो लैंड से मिल रही है। सो इट इज अवर ड्यूटी टू कंजर्व द लैंड। सो इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग हो सकती है एफॉरेस्टेशन। वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, एवरीवन ड्यूटी टू टू प्लांट ट्रीज। ओके, सो अगर हम सब मिलकर प्लांटेशन करेंगे, पेड़ों को उगाएंगे, पेड़ों को कंजर्व करेंगे, तो क्या होगा? हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू कंजर्व द
लैंड, कंट्रोल ओवर गेजिंग, ओवर गेजिंग को कंट्रोल करना है। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है टू क्रिएट न्यू लैंड बाय फ्रॉम द वाटर बॉडीज। ओके, वाटर बॉडी से नई लैंड को रिक्रिएट, नई लैंड बनाना। ओके, रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, आपको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड क्या करना है, कम मात्रा में यूज करना है। ओके, वी हैव टू यूज लिमिटेड, आपको इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यू हैव टू यूज ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी लैंड फर्टिलिटी कम नहीं होगी, सॉइल फर्टिलिटी कम नहीं होगी। ओके, इस तरह से आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके, ऑल दीज थिंग्स इफ यू फॉलो, देन वी कैन कंजर्व द लैंड। ओके, आई थिंक you will like the session. So thank you all watching my video. Please share and subscribe. Thank you all.